پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی نشریات میں ناظرین پھر خوش آمدید. میں ہوں شہزاد رضا. بات کر رہے تھے اس سے پہلے معیشت کی، اور جو ہمیں ماہرین بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو اس وقت ریسیشن ہے اس سے کتنا نقصان ہو چکا ہے، کتنی ملازمتیں لوگ کھو چکے ہیں، اور پاکستان میں جو لاک ڈاؤن میں آج سے نرمی کا اعلان کیا گیا ہے اس کا کیا مثبت اثر پڑے گا. کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے جو دیگر الائیڈ انڈسٹری ہیں وہ کیسے کام کر سکتی ہیں اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو ملازمت پر واپس لے کے آ سکتی ہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک لمبا اور طویل سفر ہے. کرونا نے جو تباہی مچائی ہے اب تک جتنے انسانوں کی جان وہ لے چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کی بحالی ہے اس میں مہینوں نہیں بلکہ سالوں لگ سکتے ہیں. ایک مشکل وقت آگے ہے جس میں سب کو اکٹھا ہو کر اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہے، اور یہ خالی مسئلہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ہے. اسی لیے عالمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ قرضے معاف کر رہے ہیں، ری شیڈیول کر رہے ہیں، ممالک کو، غریب ممالک کو امداد دی جا رہی ہے. لیکن جیسے میں نے بار بار کہا کہ اٹس اے لانگ اینڈ مونوٹونس پروسیس، اور اس کے لیے ہمیں انتظار یقیناً کرنا ہے. اس پر بات کرتے ہیں. اب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عثمان سعید بصرہ صاحب، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے. تھوڑی دیر میں عثمان سعید بصرہ صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے جوائن کریں گے. شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں. پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، CEO ہیں میو ہاسپٹل کے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے آتا ہوں. ڈاکٹر اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. عثمان بصرہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ عثمان بصرہ صاحب. لاک ڈاؤن آج سے کھل گیا ہے، نرمی کا آغاز ہو گیا ہے، اور صبح 4 سے شام 5 بجے تک جو دکانیں کھلی ہوں گی لوگوں کا رش پڑے گا اس میں یقیناً. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کرانا. آپ ایک حد تک تو کر سکتے ہیں کام، دکانداروں کو، تاجروں کو آپ اس پر باور کر سکیں، سختی بھی کچھ حد تک کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ہیں، جو کسٹمرز ہیں، خریدار ہیں، جو بڑی تعداد میں اب مارکیٹس میں نکلیں گے کیونکہ عید کی آمد ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو کس طریقے سے آپ کنونس کریں گے کہ وہ تمام SOPs کا خیال رکھیں؟ بصرہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو میں گزارش کروں کہ جو گورنمنٹ کی پرائم منسٹر کا وزڈم ہے اس سارے جو ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کی ہے، ذرا میں وہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں. دیکھیے ایک طرف تو ہمیں ایک المیے کا سامنا ہے، ایک افریت کا سامنا ہے جس کا نام کرونا ہے، اور دنیا کبھی اس سے آج تک کبھی سے نبرد آزما ہی نہیں ہوئی تھی. تو ایک طرف وہ مسئلہ ہے. دوسری طرف جو مسئلہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بڑی ناتواں معیشت ہے جو ہمیں ملی، اور اس کی فرجائل ہونے میں، اس کے ناتواں ہونے میں، کمزور ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اتنے لمبے لاک ڈاؤن کے بعد جب آپ کی دیکھیں ایک جو متوسط طبقہ ہے اور جو لوگ بلو دا ایوریج انکم فال کرتے ہیں، اب ان کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو گئی تھی. دیکھیے شہزاد بھائی، میں آپ اور ہم جیسے بہت سے لوگ بلیسڈ ہیں، ہم اور بھی 2-3 مہینے شاید کر پائیں اگر اس طرح کے حالات رہیں. لیکن یہاں پہ ایک طبقہ ہے جو 25% پاکستان کے اندر لوگ کام کرتے ہیں، ان میں جو ہیں وہ دیہڑی دار ہیں. دیہڑی دار کے ہم نے سن لیا، ہم نے بات کو ہم تو سن کے آگے نکل جاتے ہیں. دیہڑی دار وہ آدمی ہے جس کے بچے ہیں، جس کا خاندان ہے، وہ صبح جاتا ہے اور رات کو جو لے کے آتا ہے، کوئی اس کے پاس سیونگ نہیں ہے. اس کی وہی انکم ہے جو دن میں وہ لے کے آتا ہے. زندگی اس کی اسی سے رواں دواں ہے. اور سوچئے کہ اب آپ قریباً 2 مہینے ہونے کو آ گئے تو اس جو ایک دہاڑی دار کا کیا حال ہوگا. تو وزڈم اس کے پیچھے یہ ہے نمبر 1 کہ آپ کی جو ساری اکانومی ہے اس کا پریڈومیننٹ جو پورشن ہے وہ زراعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ کی گندم کی فصل بالکل تیار ہے، کھیت مزدور کو کھیت میں جانا ہے، کام کرنا ہے، مشینری کو موو کرنا ہے، گندم کی مارکیٹ تک، منڈی سے، کھیت سے منڈی تک رسائی کو ممکن بنانا ہے تاکہ ایک اور کہیں انسانی المیہ جنم نہ لے لے آنے والے دنوں کے اندر. تو وزڈم جو تھی پرائم منسٹر کی وہ یہ تھی کہ ہم اس کو ٹرائل بیسس کے اوپر کریں، ذرا کھولیں اور دیکھیں کہ پھر اس کے کیا اثرات آتے ہیں. دیکھیے یہ ایک کنڈیشنل جو ہے ایک چیز ہے، اس کے مشروط ہے اس چیز کے ساتھ کہ اگر، کیونکہ جو آپ کے دکاندار ہیں اور آپ کے جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں اور یہ طبقہ جو سارا ہمارا تاجر برادری ہے، اس میں چھوٹے بزنس مین ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس پہ بزد تھے. اب حکومت نے اپنے غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنے یہ جو تاجر برادری ہے، ہم نے کنڈیشنل مشروط اجازت دی ہے کہ اگر اس SOPs کے اوپر عمل ہوگا، سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول کو آپ مد نظر رکھیں گے. اور اس میں آپ کو بتاؤں شہزاد بھائی، بڑی کنجوسی ہوگی اگر ہم تعریف نہ کریں. جہاں ہم اپنے پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز سب کو ہم نے سلام کیا. دیکھیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے نا جی، اس سارے کرائسس کے اندر میں خود اس کو وٹنس کیا ہے جا کے. پاکستان کی تاریخ میں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، چیلنج سے ہم قوم نبرد آزما ہوئی ہے، اس سے بہتری بھی نکلی ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. ایک سوال ہے
ایک سوال ہے سر، اور میرے ساتھ مناظر حسین میرے ساتھی اینکر بھی موجود ہیں. مناظر، بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بسرا صاحب، سوال یہ ہے کہ 2 دنوں میں پاکستان میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے کرونا وائرس کے کیسز میں. ایس او پی سے آپ نے جی مشروط کیا، تو کیا ہم یہ تصور اچھا کریں کہ شہزاد، اس سوال کا جواب ہم ان سے ضرور لیں گے، جی لیکن اس وقت ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. 2 دفعہ مزید ہم نے ایکسٹینشن کی، اور وہ ایکسٹینشن تھی لاسٹ 19 مئی تک فار 2 ویکس، اور اس کی بنیاد بنی بلوچستان میں کرونا کا جو ہے تیزی سے پھیلاؤ، اور جو ہمارے پاس ٹریجیکٹری آ رہے تھے اسی بنیاد پہ ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. لیکن بلوچستان گورنمنٹ 3 آسپیکٹس کو مد نظر رکھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے موجودہ. اس میں ایک یہ ہے کہ ٹیکنیکل، دوسرا پریکٹیکل، اور تیسرا نیشنل. ٹیکنیکلی ڈاکٹرز صاحبان کا یہی سجیشن تھا کہ کرونا کی جو تیزی سے پھیلاؤ ہے اس کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کو جو ہے اس کو اسٹرکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر اسٹرکٹ نہیں کرتے تو پھر اس کے ایس او پیز کو اس پہ عمل درآمد ضروری ہوگا. اور ٹیکنیکلی چونکہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن، ہمارے لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگوں کی روزگار معیشت کمزور ہو گئی ہے، ہمارے جو تاجران ہیں، ٹریڈرز ہیں، شاپ کیپرز ہیں، ان کے بزنس پہ اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے. ہمارے لوور مڈل انکم کلاس، ہمارے غریب لوگ، یعنی ما قبل از کرونا جو صورتحال تھی اس میں 8,29,000 فیملیز ہمارے وہ اپنا کچن چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اب 1.5 ماہ میں اس میں 5 لاکھ ہاؤس ہولڈ کا اضافہ ہوا ہے. آج کی تاریخ میں 13,29,000 فیملیز ایسے ہیں بلوچستان میں جو اپنی کفالت نہیں کر سکتے اور ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس پریکٹیکل آسپیکٹ کو بھی ہم نے مد نظر رکھا. نیشنلی چونکہ ہمارا کمٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ نیشنل پالیسی، نیشنل اسٹریٹجی اور نیشنل نیریٹو کے ساتھ ہی ہم مل کر کورونا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس ضمن میں ہم نے اب تک جتنے بھی فیصلے لیے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے لیے ہیں. اب یہ جو 1.5 ماہ کا لاک ڈاؤن کا جو ایک صورتحال تھا، کل 5:30 بجے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں اس لاک ڈاؤن کو سمارٹ لاک ڈاؤن میں کنورٹ کیا ہم نے. پرسوں این سی سی کی میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوا، جو ڈیسیشن لیے گئے جوائنٹلی، اس تناظر میں ہم نے 1 سے 1.5 دن صرف انجمن تاجران کو آبزرو کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا کہ وہ 5 سیکٹر جو پہلے ہم نے ریلیکس کیے تھے لاسٹ منتھ، اگر ان میں وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں، خود بھی ماسک پہنتے ہیں، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، بغیر ماسک پہنے افراد کو وہ اپنے شاپس میں نہیں چھوڑتے، 4 سے زائد افراد کو وہ شاپس میں نہیں چھوڑتے، الاؤ نہیں کرتے. یہ اگر ذمہ داری ہم نے کہا کہ آپ دکھاتے ہیں تو مشروط طور پہ ہم لاک ڈاؤن کو ریلیکس کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے تاجر برادری نے، ہمارے ٹریڈرز نے، ہمارے پبلک نے بڑا پازیٹیو رسپانڈ کیا، اور ہم نے بھی فوری طور پہ کل جو ہمارا لاک ڈاؤن تھا اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن میں کنورٹ کرتے ہوئے آج صبح 3 بجے سے 5 بجے تک جتنی بھی مارکیٹس ہیں ان کو جو ہے کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور اس میں ٹیک اوے سروس ہے ریسٹورانٹس کی، میڈیکل سٹورز ہیں، داعش ہے اور ڈیری پروڈکٹس. یہ جو شاپس ہیں یہ 24/7 یہ کھلے رہیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں، ایون کریانہ جنرل سٹورز، پرچون کی دکانیں، اشیاء خورد و نوش کے جو شاپس ہیں وہ بھی صبح 3 سے 5 بجے تک کھلے رہیں گے. اس کے بعد شاپ بند کرنے کا وہ پابند ہوں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1.5 ماہ میں جو ہمارا لاک ڈاؤن تھا وہ زیادہ بارآور اس لیے ثابت نہیں ہو پا رہا تھا، اس کے ثمرات بہت زیادہ اس لیے سامنے نہیں آ رہے تھے کہ ہمارے جو ٹریڈرز ہیں، ہمارے جو انجمن تاجران کی تنظیمیں ہیں وہ کچھ زیادہ تعاون نہیں کر رہے تھے. شٹر اوپر کرتے، کسٹمر اندر چلا جاتا، شاپنگ کرتا، پھر باہر نکل آتا، پھر شٹر جو ہے وہ نیچے ہو جاتا تھا.
یہ ایک آنکھ مچولی کا کھیل شروع ہو گیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ. ہم نے 2700 شاپ سیل کیے, متعدد لوگوں کو اریسٹ کیا, 34 لاکھ سے زائد صرف اپریل میں روپے جو ہے ہم نے جرمانہ عائد کیا. اس کے باوجود بھی یہ جو آنکھ مچولی کا کھیل ہے, ہمیں چونکہ مارکیٹ بند کرنا ہمارا مطمع نظر کبھی نہیں رہا, لاک ڈاؤن کا شوق کبھی نہیں رہا, عوام کی بھیڑ اکٹھے نہ ہونے دینا اور کورونا کا تدارک, یہ ہمارا مقصد تھا اور اس مقصد کے تحت لاک ڈاؤن کیا گیا. اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کو بہتر انداز میں ہم اس طرح سے کر سکیں گے کہ انجمن تاجران کی تمام تنظیموں نے مارکیٹ میں ایس او پیز کو انشور کرنے کی شورٹی گارنٹی خود لے لی ہے. اب وہ اس بات کا پابند ہیں کہ مارکیٹ میں لوگوں کا جو ماسک پہنے کا ہم نے مینڈیٹری قانون 18 اپریل کو لاگو کیا تھا, اس پہ عمل درآمد کرائیں گے. ماسک نہیں ہے تو کپڑا, شال, مفلر, اینی تھنگ, اس سے آپ اپنا ناک منہ ڈانپنے کا پابند ہوں گے, اس پہ وہ عمل درآمد کرائیں گے. خود ماسک کا استعمال کریں گے, شاپس میں سینیٹائزر رکھیں گے. 4 سے زائد افراد کو بیک وقت کسی اپنے شاپ میں وہ اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. 1 میٹر کا جو منیمم ایک ریکوائرمنٹ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا, اس کو مینٹین رکھیں گے. اگر وہ اس سارے معاملات کرتے ہیں جو انہوں نے شورٹی دی ہے, گارنٹی دی ہے, تو یقیناً کاروباری زندگی بھی بہتر انداز میں آگے بڑھتا رہے گا, چلتا رہے گا. عوام بھی اپنی شاپنگ کے لیے, روزگار زندگی کے لیے ان کو بھی مشکلات کا سامنا نہیں رہے گا. اور جو کورونا کے پھیلاؤ کے لیے جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ایس او پی ہے, اس کے فالو ہونے کے بعد, ماسک پہننے کے بعد, ہمیں امید ہے کہ کورونا کا جو پھیلاؤ ہے وہ بلوچستان میں کم ہوگا. اور اگر ہمارے تاجران برادری تنظیمیں یہ جو کمٹمنٹ انہوں نے کل ہمارے ساتھ کیا ہے, اگر اس پر عمل درآمد نہیں کرتے پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. شاپس نہ صرف سیل کیے جائیں گے بلکہ جو سامان شاپس میں ہوں گے ان کو بھی ہم ٹیمپریریلی کانفسکیٹ کر دیں گے. اور شاپس ہی میں اگر 4 سے زائد لوگ نظر آئے تو کسٹمر پہ شاپ کے اندر کارروائی نہیں ہوگی بلکہ مالک جو ہوگا دکان کا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن اگر مارکیٹ میں شاپ سے باہر لوگوں کی بھیڑ کی شکل ہم نے کہیں دیکھی تو ان کو اریسٹ کیا جائے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے انجمن تاجران, ہمارے عوام, ان کا مطالبہ تھا, عوام کا بھی مطالبہ تھا, بیک وقت ہم نے اس کو پورا کیا. پورے ملک میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بلوچستان گورنمنٹ ہم جو نیشنل پالیسی ہے, نیشنل نریٹو ہے, نیشنل اسٹریٹجی ہے کورونا کے تدارک, روک تھام اور اس کے ساتھ مقابلے کے لیے, ہم اس کا حصہ ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بہ شانہ ہم اس ضمن میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ اب تک بین برقرار ہے. اور اسکول میں تعطیلات کے حوالے سے 15 جولائی تک ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے اس کو انڈورس کیا ہے اور ہم ان کے ساتھ اس سلسلے میں چل رہے ہیں. دوسرا, ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئے ہیں, شام سے اب تک مجھے 171 رپورٹس موصول ہوئے ہیں جن میں 33 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں. اور اب ہمارے کل جو کورونا پازیٹیو کیسز ہیں بلوچستان میں وہ ہو گئے 1909 اب تک. اور لوکل آپ کا جو ٹرانسمیشن ہے, لوکل آپ کے جو لوگ اس سے متاثر ہیں وہ ہو گئے 1758. میں صرف اپریل کی فرسٹ ویک سے آج تک یہ جو 6 ہفتوں میں جس تناسب سے کورونا سامنے آیا ہے, بڑا ہے, تھوڑا سا ڈیٹیل میں شیئر کروں کہ اپریل کی فرسٹ ویک میں ہمارے پاس 40 کیسز آئے, سیکنڈ میں 50, تھرڈ میں 84, پھر یہ 304 ہو گئے فورتھ میں, ففتھ میں 442 اور 6 ویک میں 709 ہو گئے. اور ویکلی یہ 6 ہفتوں کا جو ویکلی انکریز اس میں جو ریپڈ پرسنٹیج ہے وہ ہے 161%. کل ہم نے اب تک کیے ہیں 11,900 ٹیسٹ کنڈکٹ, جس میں سے پازیٹیو آئے 1909 جو بنتے ہیں 13.8%. اس سے قبل آپ کا ایوریج جا رہا تھا گزشتہ ہفتے 13%. اس میں یہ تیزی سے انکریز ہو رہا ہے. کل جو ہمارے پاس ٹوٹل ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے فرسٹ ٹائم جن کے رپورٹس سیمپل لیے گئے 530 ٹیسٹ, ان میں سے 151
वो पॉजिटिव आए, जिसका मतलब है 30%। परसों आपका जो ओवरऑल टेस्ट कंडक्ट हुए थे और उसमें जो पॉजिटिव केसेस सामने आए थे वो थे 21%। परसों उससे एक दिन कबल आपका था 20%। तो ये इसमें इजाफा हो रहा है। रैंडम हमने जो सैंपलिंग क्वेटा में की है 511 टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें 312 के नताइज सामने आए, उसमें 41 पॉजिटिव आए हैं, जो अगेन कोई 18-20% इतने ही बनते हैं। तो ये एक तनासुब जो है आपके सामने है। हमने आवाम से इसीलिए गुजारिश की है कि SOPs का ख्याल रखें, कोरोना आगे बढ़ रहा है और अब हमारे पास चूंकि सफिशेंट मिकदार में, क्वांटिटी में VTM स्वाब्स और टेस्टिंग किट्स आ गए हैं, तो मजीद तेजी से हम मजीद अपने लोगों का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अब हम इस वक्त रैंडम कर रहे हैं, नेक्स्ट में एग्रेसिव टेस्टिंग करेंगे फौरी तौर पर, ताकि पूरे बलूचिस्तान में जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमारे सामने आए। और मुमकिन है कि ये ज्यादा हो और मुमकिन है कि कम हो। बाज आपके डिस्ट्रिक्ट कम मुतासिर हैं, कोयटा ज्यादा मुतासिर है। कोयटा के बाद अब जो है आप देखें पिशीन ज्यादा मुतासिर हो रहा है। पहले आपके तफ्तान में लोग ज्यादा होते थे, अब जो पिशीन का क्वारंटाइन सेंटर है उसमें आप देखें कि सिर्फ पिशीन में 381 लोग इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर में आपके मौजूद हैं, जबकि तफ्तान जिसमें 203 हैं, हालांकि उसमें चारों सूबों के लोग हैं 203। पिशीन में आपके सिर्फ पिशीन के लोग वो 381 हैं, सिब्बी में 150 हैं, जाफराबाद में 35, लजपेला में 38, कुल जो है 963 आपके लोग 14 अजला के क्वारंटाइन सेंटर में इस वक्त मौजूद हैं। और मजीद टेस्ट कंडक्ट होंगे तो हमें मजीद भी पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में। 14 अजला में जो है 963 क्वारंटाइन सेंटर्स में है। बाकी हमारे जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं मजमूई तौर पे इनमें जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में 41 पेशेंट इस वक्त मौजूद हैं, FJ चेस्ट हॉस्पिटल में 4 हैं, और अपने घरों पे जो सेल्फ आइसोलेशन है उसमें 1584 लोग हैं। 222 लोग अब तक सेहतयाब हो चुके हैं और 24 लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। खुशी की बात यह है कि बलूचिस्तान में जो फैटलिटी रेट है वो सिर्फ 1.5% है और ये एवरेज गुज़िश्ता 1.5 माह से इसी तरह चला आ रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह के जो रिपोर्ट्स हमारे सामने अब तक आए हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं वो 1.5% हमारी फर्टिलिटी रेट है। रिकवरिंग रेट हमारा 55% था, फिर 15% तक आया, अब कोई 13.5% रिकवरी थोड़ी कम है। और हमने ये जो फैसला किया था कि लोगों को होम आइसोलेशन में रखेंगे जो पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, ये बड़ा एक बेहतरीन फैसला साबित हुआ। कल परसों कुछ दीगर सूबों ने भी अब जाके ये फैसला किया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमने 1.5 माह पहले ये फैसला किया, क्योंकि एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ था कोरोना के मस्बत केसेस के साथ। लोग इस खौफ से भी सिम्पटोमेटिक होने के बावजूद वो अपना चेकअप नहीं कराते थे, टेस्ट नहीं कराते थे। उनको ये लगता था कि अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर हमें आइसोलेशन फैसिलिटी में 14 अय्याम के लिए या उससे ज्यादा हमें मुकय्यद रखा जाएगा। इस आम शहरी हों या कारोबारी अफराद, हर शख्स के लिए SOPs पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। मुश्तरका और कौमी हिकमत अमली के साथ कोरोना की वबा पर काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है और तमाम फैसले वफाक की मुशावरत के साथ किए जा रहे हैं। लॉकडाउन को अब स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील कर दिया गया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की मीडिया ब्रीफिंग आप कोयटा से बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।
पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खसूसी नशरियात जारी है। नाजरीन, मेरा साथ दे रहे हैं मंजर हुसैन, मेरे साथी एंकर, हमारे साथ उस्मान सईद बसरा, शफीक अहमद और प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम मियो हॉस्पिटल के CEO मौजूद हैं। बसरा साहब, आपके पास आने से पहले मैं ज़रा डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज एक खबर थी कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनमें कोरोना वायरस के असरात ज़ाहिर ही नहीं होते, तो क्या ये इनके लिए उतनी ही ख़तरनाक है वो बीमारी जैसे बाकी आम लोग जिनमें ये असरात ज़ाहिर हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि वो कोरोना में मुब्तला है, उनको कोई साइन सिम्टम नहीं होता और वो रूटीन का अपना चेक कराते हैं। इस बिना पर कि उनका कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है तो पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे लोगों को भी डिपेंड करता है कि उनकी सेहत कैसी है। अगर तो नौजवान है और उनको कोई और बीमारी नहीं है तो कोई फिक्र की बात नहीं, इंशाल्लाह वो सेटल हो जाता है। लेकिन जो ओल्ड एज है और उनको कोई और बीमारी भी है, लाइक शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की तकलीफ है या फिर फेफड़ों की पहले से तकलीफ है, तो उन लोगों के लिए ये बड़ी सीरियस चीज है कि उनमें काफी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। ठीक ठीक। शफीक साहब, आप ज़रा बताइए कि ये लॉकडाउन अब हुकूमत ने खोलने का इरादा किया, बल्कि ऐलान कर दिया, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन इस पर शुरू हो गई है। तो अभी बलूचिस्तान के हुकूमत के तर्जुमान बात कर रहे थे लियाकत शहवानी साहब कि लोगों पर भी सख्ती होगी, दुकानदारों पर भी सख्ती होगी, लेकिन हम देखते हैं कि हम ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। आजकल भी मतलब बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, ग्लव्स नहीं पहनते, ख्याल नहीं रखते इन चीज़ों का। तो इस चीज़ को कैसे उजागर करें उनमें, किस तरीके से उनको समझाएं? देखिए, गवर्नमेंट घर में जाके ये गवर्नमेंट इसको समझना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा ये वबा है, एक ऐसी चीज होती है। तो ये एजुकेशन है, और जिस तरह आपने कहा। शफीक साहब, आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं। उस्मान बसरा साहब, आपके लिए जो सवाल पहले मैंने छोड़ा था कि हुकूमत का काम है फैसिलिटेट करना कारोबार को, ताकि वो जो मुलाजमतें लोग खो चुके हैं वो वापस किसी तरीके से बहाल हो सकें। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा पैकेज मिला, इंडस्ट्री का उसे दर्जा दिया, लेकिन हमने देखा कि वो एक्टिविटीज़ जिस रफ्तार से या जिस जज्बे के साथ शुरू होनी थी वो नहीं हुई। तो इसकी क्या वजह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अभी किसी कशमकश का शिकार है आपके ख्याल में या नहीं? देखिए शहजाद भाई, सबसे पहले तो नोटिस करने वाली जो बात ये है कि ये जो अभी हमने इसको कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है और इसमें जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कभी आज तक इसको विटनेस नहीं किया गया। ये अपने अंदर एक बिल्कुल नई चीज है और ये हौसला अफजाई कर रहा है कि पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मसला ये है क्योंकि पिछले 2-1 महीने से पूरी शिद्दत से लॉकडाउन है और चीजें जो हैं वो बहुत, उनकी पेस जो है वो उनकी स्लो हो चुकी है। इकोनॉमी की पेस भी स्लो हुई है और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर भी पेस जो है वो बेइंतहा स्लो हो चुकी है। उस सुस्त रवि के शिकार होने की वजह से चीजें इस तरह से आपको एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही। लेकिन जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप अगर उनसे इंडिविजुअली पूछें तो वो सब लोग इस पे बहुत ज्यादा खुश हैं और इंतजार कर रहे थे कब ये जो लॉकडाउन है ये खत्म हो तो इंडस्ट्री पूरी तरह एक मुकम्मल एक स्विंग के साथ जो है उसमें वापस आए। तो जो इसमें एक एक्साइटमेंट आपको अभी मिसिंग नजर आ रही है, उसकी वजह जो है वो लॉकडाउन है। देखिए, जब अभी हमने लॉकडाउन खोला है, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जो हमारी सनतें खुलेंगी, इसमें आपके सरिये की, सीमेंट की, फिर उसके बाद रेत और बजरी और ईंटों का जो भट्टे हैं वो खुलेंगे। मनाजिर आपकी जाते एक सवाल की इसमें एक इशू ये है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेंगे जो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन खरीदार किधर है? जब कोई शख्स खरीदने आएगा लाखों करोड़ों रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी, तो उससे तो पूछा जाएगा कि भाई आप पैसे किधर से लेके आए। तो जब कस्टमर नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ये कंसर्न जो है जरा आगे शो किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें जहाँ पे कोई भी आप एक एग्जाम लेते हैं तो उसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक रिलीफ दिया गया है जो खरीदार को, वो है कि जो आप उस पर गेन टैक्स थे, हमने इसका अल्हम्दुलिल्लाह खात्मा कर दिया है। पहले बहुत ज्यादा गेन टैक्स थे,
जो डीसी वैल्यूज टैक्स थे, जो आपकी वैल्यूएट कर रहे थे हम डीसी रेट के ऊपर, तो उसके ऊपर भी ट्रांसफर की बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, तब भी लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे। लेकिन मसला ये है कि जब इसमें आप एक रिलीफ दे रहे हैं, जब आप इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आने वाले इन्वेस्टर को रिलीफ दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इससे एक चेन, एक साइकिल जो खुद ब खुद बन जाएगा, जिसका खरीदार भी आपको मार्केट के अंदर, आज भी पाकिस्तान के अंदर घरों की इस कदर शॉर्टेज है कि अगर गवर्नमेंट अपने तौर से भी लाखों घर बनाना शुरू कर दे तो भी कम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लोग अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से यहाँ तो जो हुकूमतें रही हैं, उनका मकसद कभी लोगों को रोटी कपड़ा मकान देना ये नारे की हद तक तो रही है, कभी किसी के मतमय नजर, कभी किसी मंशूर का अमली हिस्सा ये नहीं रही है। ये दिलरुबा किस्म के नारे रहे हैं इलेक्शन के अंदर। लेकिन अब बसरा साहब, इन पे काम हो रहा है और हमारी जो मईशत के इस शादियों में हमने जो लॉस फेस किया है कोरोना वायरस की सूरत हाल के तनाजुर में, उसको हमने रिकवर कैसे करना है, ये सवाल आपसे करूंगा। लेकिन डॉक्टर असद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। इससे पहले आप ये बताइएगा कि अब आजकल के इस दौर में बिलखसूस लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट होने के बाद एक आम शख्स जो है वो नफ्सा नफसरी और अफरा तफरी का शिकार है कि जहनी तौर पर वो आसूदगी नहीं है, वो क्लियर डायरेक्शन और लाइन नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है कि किस पैटर्न पे चल कर जो है वो खुद को महफूज रखना है। घर में मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं रखा जा सकता खुद को, और बाहर निकलते हैं तो एक थ्रेट, एक खौफ जो है वो महसूस होता है। इस खौफ को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है? मेडिकली आप क्या कहेंगे कि किस पैटर्न पे एक आम शख्स को सोचना चाहिए? देखिए मतलब देखिए, पाकिस्तान में 3 तरह के लोग हैं। एक तो तनख्वाहदार हैं, और एक बिजनेसमैन है, वेल सेटल, और एक वो उस किस्म के लोग हैं जिन्होंने डेली बेसिस पर अपना कमाई करनी है। तनख्वाहदार लोग 6 महीने की तनख्वाह लेके घर गुजार सकता है, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जिन्होंने डेली बेसिस पर अपनी कमाई करनी है और अपना घर चलाना है। देखिए, सारी दुनिया में SOPs के तहत दुकानें खुलती हैं। बड़े शॉपिंग मॉल में, बड़ी दुकानों में 10 लोगों को एट ए टाइम जाने दिया जाता है, और उनको जो बाहर आते हैं तो अगले 10 लोगों को जाने दिया जाता है। छोटी दुकानों में 2 चले जाते हैं, वो वापस आ जाएं तो अगले 2 चले जाएं। तो हमें SOP के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। हम जिंदगी को यहाँ पर रोक नहीं सकते, इस मूवमेंट को कभी रोक नहीं सकते कि आप सब लोगों को घरों में बिठा दें। हमें अब इसके साथ चलना पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान में टीबी से भी लोग वफात पा रहे हैं, बाकी बीमारियों से। कोई स्टैंड स्टिल नहीं हो जाता काम। हमें जिंदगी के साथ मुआशी पहिया भी चलाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यू वांट टू से कि दिल छोटा नहीं करना, घबराना नहीं है और किसी खौफ में मुब्तला नहीं होना, इन्हीं SOPs पर अमल करना है, और आप अपनी जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो सर अंजाम दें तो आपको यकीनी तौर पर जो वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। शहज़ादा में असद असलम साहब ने ज्वाइन किया है, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम असद असलम साहब, एंड वंस अगेन वेलकम बैक। मेरे ख्याल में अगर शफीक अहमद साहब का मेरे ख्याल में राब्ता हमारे से बहाल हो गया, उनसे सवाल करते हैं। शफीक साहब, एक और बसरा साहब, मैं चाहूँगा इस पे आप भी इज़हार ख्याल करें। शफीक साहब, पहले आपसे ये बताइएगा कि अब बजट की तैयारी हो रही है, आगे जून में बजट अनाउंस होगा, किन किन एरियाज़ को फोकस करना है, कहाँ कहाँ हुकूमत ने कट लगाना है आपके ख्याल में? और बसरा साहब, इस पर आपका भी कॉमेंट चाहूँगा। पहले शफीक साहब आप। देखिए, बजट अभी बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, इसलिए कि जब से 18th अमेंडमेंट का मसला आया है तो उसमें अब बहुत सी जो मेन पैसे हैं वो आप प्रोविंसेस को मुंतकिल करते हैं। मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जब ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक की वजह से टैक्स कलेक्शन डेफिनेटली कम हुई है। जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो उसमें चले आपको कुछ बाहर की फॉरेन फंडिंग हो गई, कहीं से आपको रिलीफ मिल गया ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से, but overall it will be a very difficult task for those who are making budget or preparing budget for the country. मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान को, चूंकि हमारी मईशत का मसला ये 2-3 साल से बड़ा सिवियर है, यानी ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने से पहले ही मईशत का मामला बड़ा सीरियस था, और उसमें खातिर ख्वाह कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। सिस्टम जो बनाना चाहिए था वो सिस्टम एक्चुअली नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि हमारी डेफिनेटली बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, और हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे कि हम कोई चीज प्रोड्यूस करके। अच्छा शफीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। उनके साथ मिलाकर अनफॉर्चुनेटली 221 तक पहुंच चुके हैं।
जो हमने फैसले किए, एक तो ये है कि हफ्ते में जो हमने दुकानें और जो आगे जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत, उसके बाद हमारी जितने भी सिफारिशात थे सूबाई लेवल पे वो हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने पेश किए, और फिर उसके ऊपर हतमी फ़ैसला वही जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो फैसला हुआ है उस पे अमल दरामद हम करने जा रहे हैं। इसमें ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दुकानें हम जो खोल रहे हैं वो इसमें हमने जो फैसला किया है उसमें सिर्फ एक फैसला हमने ये किया है कि 2 दिन का जो नागा है वो 3 दिन हमने कर लिया, यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार। ये ज़रूरी इसलिए हम समझते हैं कि जो SOPs है उसको फौरी तौर पर जब हम ये खोलने जाएंगे तो SOPs का उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये जुमे का दिन इसलिए साथ वो कर लिया। आगे जैसे SOPs के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगी, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर करने का इसके लिए हमने ये तरीका बनाया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रही है, हमारी ताजर बरादरी से भी इस हवाले से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे सरकारी लेवल पे हमारी उनके साथ बातचीत तो हो चुकी है कि जो भी इस हवाले से जो शॉप्स होंगे जो हम खोलेंगे उसके ऊपर ताजर बरादरी की भी जिम्मेदारी होगी कि वो उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए, और हम फिर उस पे कहेंगे भी, अगर जब मॉनिटरिंग होगी तो उसके ऊपर हम बाकायदा से वो जो ताजर बरादरी है उसके नोटिस में भी लेकर आएंगे कि यहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, और फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको फौरी तौर पर उसको सील करेंगे। ये जितने भी फैसले किए ये मुश्किल फैसले, इस वक्त कोरोना की जो वबा है, फिर खसूसन जो पेशावर की सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है यहाँ पे, और फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो हमने फैसले किए हैं नरमी के, तो वही बात है कि जो दो तरफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि एक तरफ हमने कोरोना वबा के खिलाफ अपने अवाम को महफूज बनाना, और दूसरी तरफ हमने अपने ही अवाम को जो है वो जो उनके मसाइल है, जो उनके मुश्किलात है, जो इस वक्त ताजर बरादरी के हैं, जो हमारे गरीब तबका है, जो रेडी वाला है, जो ठेले वाला है, जो मजदूर जो दिहाड़ी करता है, उसका भी हम सोच रहे हैं, जिस लेवल के जो कारोबार है उसका भी सोच रहे हैं। तो ये जो नरमी की गई है कारोबार में, ये जो है इसके ऊपर SOPs पे अमल दरामद पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और साथ ये भी बता दूं मैं कि मेडिकल स्टोर्स और दूसरे जो अशियाए खुर्द व नोश हैं, वो मेडिकल स्टोर्स तो 24/7 हमने पहले से कहा हुआ, और अशियाए खुर्द व नोश की जो दुकानें हैं वो हमने जो पहले से फैसला किया हुआ है उसमें कोई नागा नहीं होगा। अब ये जो नागे का है वो 3 दिन हमने शुरू में हमने 3 दिन नागा SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये रखा है। जैसे जैसे SOPs पे लोग अमल दरामद करना शुरू कर देंगे, हम ये जो नागा है उसके ऊपर हम फिर नज़रसानी करेंगे, उसको फिर जो है हम वही 2 दिन पे ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको हम चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और इस पे जो है ना वो लॉकडाउन में अगेन नरमी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया या ये वबा ख़त्म हो चुकी है, ये बिल्कुल मौजूद है, इतना ही ख़तरा है। जो भी एहतियाती तदाबीर है वो हमें इस्तेमाल करने होंगे और उस पर स्ट्रिक्टली अमल करना होगा। हमने इस पे जो मशावरत हुई है ताजर बरादरी के साथ, हमारी मशावरत हो रही है मुख्तलिफ लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। जैसे मैंने पहले कहा कि उलमाए कराम के साथ हमारी बातचीत हुई है, हमारे
गवर्नर साहब ने जो कमेटी है, जो सूबाई लेवल पे कमेटी बनी है, उनके साथ वो भी मुतवातर राब्ते में है, उसका भी हम वो कर रहे हैं। साथ हमारे ख़ुद वज़ीर आला साहब महमूद ख़ान साहब ख़ुद फ्रंट फुट पे है, सारी चीज़ों को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और ख़ुद देख रहे हैं हालात। गो कि जो है कोरोना वायरस का मुश्किल है, तकलीफ़ है लोगों को, लेकिन ये सारी तकलीफ़, ये सारी मुश्किल है, ये अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए ये जो स्टेप्स उठाए और जो आगे हमने स्टेप्स उठाने, वो भी दोनों चीज़ों को देकर घंटों के हिसाब से हम मॉनिटर करेंगे। जब उस जो मौजूदा जो हमने नरमी दी है, जब उसके ऊपर हमारी ताजर बरादरी या हमारे तमाम जो जिसमें हमने नरमी दी है, मुख्तलिफ जो सेक्टर्स में हमने दी है, जब उसकी SOPs पे अमल होगी, और फिर साथ ये कि अवाम की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो जाएं अपना इस नरमी के सूरत में, तो वो भी अपने SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि वो ये न भूलें कि वो जब बाहर जाते हैं, हमेशा की तरह मैं जो ये बात कहता हूं कि जी ये कोरोना वायरस हमारे घर ऐसे नहीं आता, चल कर खुद नहीं आता, हम खुद बाहर जाते हैं, खुद बाहर से लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद हमारा पूरा फैमिली, हमारे प्यारे जो होते हैं, और फिर पूरा मोहल्ला, फिर पूरा टाउन, फिर ये इस तरीके से स्प्रेड होता है। तो इसमें हमने एहतियात करना है, और इंशाअल्लाह ताला जब हम इसमें एहतियात करेंगे तो उसका ये बहुत जल्द इस कोरोना वबा को हम शिकस्त देंगे। रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसमें जितना भी हमारे मेरी ये अपील गुजारिश है अपने हुकूमत की तरफ से, अपने वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब की तरफ से, कि जो भी मुखैर हज़रात हैं वो इस महीने में जितने सदक़ात, खैरात, ज़कात जितना कर सकते हैं वो करें। एक तो गरीब, वो जो हमारे गुर्बत के लकीर से नीचे के लोग, और दूसरे वो सफ़ेद पोश लोग कि जो ना हाथ फैला सकते हैं, न किसी को कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन वो तकलीफ़ में, तो उनका हमने एज ए कौम, एज ए नेशन, एज ए मुसलमान, हम सब ने उनका साथ देना है और उनको भी साथ लेकर चलना है। इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान के बाबरकत महीने में आइंदा जो दिन है, इसमें ये पूरा रमज़ान का महीना बहुत कीमती महीना होता है, और फिर आइंदा जो दिन है ये बहुत कीमती है। इसमें मेरी तमाम आवाम से ये एक अपील है कि अपने घरों को इबादतगाह बनाएं और वहाँ पे अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएं कि हमें अल्लाह ताला पाक इस वबा से महफूज रखे। इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अल्लाह ताला पाक हमारी, जब हम दुआ करेंगे, जब हम उनकी तरफ रुजू करेंगे, तो ये जो मुश्किल वक्त है ये हमारे ऊपर इंशाअल्लाह ताला इससे हम निकल जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में, वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब के इंस्ट्रक्शन पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वज़ीर आला साहब ख़ुद फ्रंट फुट पे हैं। मैं अगेन अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तमाम तिब्बी अमला को मैं सलाम पेश करता हूँ कि इस वक्त वो फ्रंट फुट पे ये जो जंग लड़ रहे हैं, और इस तरीके से मैं उन तमाम लोगों को जो इस वक्त डायरेक्टली कोरोना वायरस की वबा में फ्रंट फुट का किरदार, जो दूसरे हमारे डिपार्टमेंट है या जो दूसरे हमारे लोग हैं, उनको भी सलाम पेश करता हूँ। ये वो वक्त है कि इनका ये जो हमारा डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और तबी अमला है, इसको हम सारी ज़िंदगी हमारे बच्चे, हमारे नस्लें इनको याद रखेगी, और इनके साथ पूरी कौम की माएँ, बहनें, बेटियों का और बुज़ुर्गों का और बच्चों का सबकी दुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम कोरोना वबा को शिकस्त देंगे। थैंक यू वेरी मच। दुकानें और मार्केटें सूबे भर में हफ्ते और इतवार के रोज़ बंद रहेंगी। सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर और दी गई गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं और उन पर किसी किस्म की कोई नरमी नहीं की जा सकती। सूरत हाल पर लम्हा बलम्हा नज़र भी रखे हुए हैं और ताजिर बरादरी के साथ बातचीत का सिलसिला भी जारी है, ताकि एक बेहतर मुशावरत के ज़रिए हम आहंगी की फ़सा फ़रोग पा सके और दी गई SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर की न्यूज़ ब्रीफिंग आप पेशावर से मुलाहिज़ा कर रहे थे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन।
पाकिस्तान है, रमजान पाकिस्तान। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। शहजाद, अगर मजमूई तौर पर बात करें तो 2-3 चैलेंजेस जो हैं हमें इस वक्त दरपेश हैं। एक तो यह है कि हमें अपना माशी पहिया चलाना है, दूसरा यह है कि हमें लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, और तीसरा यह है कि हमें अपना जो एक सोच का मयार है उसको हमने किसी मुश्किल का शिकार नहीं करना, यानी कि हमने दिल छोटा नहीं करना, हमने घबराना नहीं है। हमने एक यकीन और एक अज़्म के साथ इन SOPs पर अमल करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हमारे मामूलात ज़िंदगी जो है वो बतरीक़े एहसन बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकें, और साथ ही साथ हम नफ्सियाती तौर पर भी मजबूत और मुस्तहकम हो सकेंगे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये जो फ़ैसला हुआ है लॉकडाउन खोलने का बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है, और उसकी वजह ये नहीं कि कोई बेहतियाती की जा रही है या कोई नाअहली है, बल्कि ये कि हम क्योंकि अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी हमने बढ़ा दी है कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा केसेस सामने आएंगे, नेचुरल सी बात है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये लॉकडाउन अब खोला है तो ये ज़िम्मेदारी लोगों पर यकीनन आती है। जैसे बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी बात कर रहे थे कि अगर कहीं जब घट्टा नज़र आएगा तो वहाँ पर लोगों पर गिरफ्तारियाँ होंगी, और एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने किया। गुज़िश्ता 1-2 रोज़ पहले हमारे साथ मौजूद थे CM गिलगित बल्तिस्तान, और वो ये कह रहे थे कि जो शख्स मास्क पहने बगैर निकलेगा उस पर 100 रुपये जुर्माना करेंगे और उसी पैसे से उसको मास्क खरीद के दे देंगे। तो बात यह है कि आपने कहीं ना कहीं तो उस पर फुल स्टॉप लगाना है। आप कई साल तक या नहीं बैठ सकते घरों में मुकीद होके या अपने कारोबार को बंद करके। और अमेरिका की मिसाल देखें आप, सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा अमवात, लेकिन वो भी मजबूर हैं बावजूद इसके कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है कि इसको यकीनन खोलें। क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। बिल्कुल, दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर जो ये इसके अलावा चारा नहीं है कि लोगों को बहरहाल जो है वो उनके माशी निज़ाम जो है उनको कंटिन्यू करके देना है। इस हवाले से उनको ईज़ और जो कम्फर्ट है वो क्रिएट करके गवर्नमेंट की जानिब से देनी है। और बड़ी बड़ी मईशत जैसे कि आपने भी अमेरिका का जिक्र किया, इसके अलावा मुल्क के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ पर अब जो लॉकडाउन है उसमें नरमी लाई जा रही है। और सब जगह पे जो कॉमन चीज़ है शहजाद, जो मैं इंडिकेट करना चाहूँगा वहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और काम जो उसको हमारा जो ये दुश्मन है ये इनविजिबल तो है लेकिन इनविंसिबल नहीं है। डेफिनेटली इसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन इसको शिकस्त दे सकते हैं। और इसकी मिसाल चाइना ने कायम की, जहाँ पर अब थिएटर्स भी खुल गए हैं, मॉल्स भी खुल गए हैं, और वो बावजूद इसके कि उसका अभी तक की तलाश जो है कि ओरिजिन वहाँ से हुआ और चाइना में पहले केसेस आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से वॉर फुटिंग पे तैयारी की वो कामयाब हुए उसमें, और अब वो वापसी की तरफ गामजन है। अगरचे दुनिया ने एक बड़ी तवील जंग जो हम कह रहे हैं लड़नी है अगले कई साल तक, इसके शॉक्स हैं वो चाइना ने मिसाल कायम करके दिखाई है। चाइना ने प्रूव किया है कि यस, अगर आप महफूज रहें और आप जो है वो उन कवानीन पर और उन SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं तो यकीनी तौर पर आप जल्द या बदेर इस वबा से जो है वो छुटकारा हासिल कर लेंगे। और इस वबा से छुटकारा हासिल करने का वाहिद तरीका जो अब तक तमाम माहिरीन के मुताबिक सामने आया है वो सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी वैक्सीन अभी तक जो है वो दरियाफ्त नहीं हुई है। तो सिर्फ ये है कि आपने मोहतात रहना है। और एक शख्स जब अपनी एहतियात करता है वो सिर्फ अपनी एहतियात नहीं करता बल्कि वो अपने पूरे ख़ानदान और पूरे शहर, सूबे और मुल्क बल्कि पूरी इंसानियत की एहतियात करता है। और रमज़ान मुबारक का महीना है, अगर आप कोई नेकी इस नीयत से करते हैं, हालांकि इस वबा से या इस बीमारी से महफूज रहने के हवाले से अगर आप हिफाजती इक़दामात ही क्यों ना अपनाएं, तो जनाब अगर आप सिर्फ ये नेकी करेंगे कि हमने खुद को और दूसरों को महफूज रखना है तो इसका बड़ा अच्छा एग्जैक्टली। और फाइनल नोट ये कि जो SOPs जारी की हैं हुकूमत पाकिस्तान ने उनको ज़रूर फॉलो करें। आप आवाम हैं, ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, किसी ऑफिस को रन कर रहे हैं, वो SOPs हर जगह अवेलेबल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे, बाकी अखबारात में उनका जो है वो पब्लिसाइज उसको किया है, तो वो ज़रूर देखें, उसको फॉलो करें, और ये लाजमी है इसको फॉलो करना। बिल्कुल, इसके बगैर अब जो है वो कोई चारा नहीं है। बस लास्ट के मोहतात रहें और महफूज रहें, और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादाब और महफूज रखे। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।